Welcome to our channel Concept Builders by Neeraj Putadra. Do subscribe to our channel for latest videos. Hello friends. So let's continue from yesterday's discussion. Yesterday we discussed about the macroeconomics part of the syllabus, that is the national income. Continuing from there only, today we'll be discussing about the two different kind of policies that are used to control the various impacts or various attributes that can arise during a period of time by which the national income might get affected. So how do you control those kind of situations? So there are two tools given to the government of India, or I should not say government of India. There are two economic tools which are used for managing these kind of situations. These tools are fiscal policy and monetary policy. So generally fiscal policy is the one which is governed by the government of India, and primarily this comes out once in a year via budget, the financial budget, which comes in generally end of Feb or starting of the March, which generally went for India right now. So monetary policy on other hand is a short term policies which keep on changing, and it is governed by RBI. So just try to think that there is one policy which has been dictated by government of India, which is for a period of 1 year. Okay, it is not going to happen that everything remains the same or goes as per the planned mechanism of the government of India. So for managing the small attributes, small changes here and there that are happening in the economy, the monetary policies come very handy in the hands of RBI to manage the end goal of the fiscal policy of the country. So by that, can I easily conclude that your monetary policy has to be in line with the fiscal policy of the country? Because if it is not in line with the fiscal policy of the country, then there are very high chances then that the both RBI and the government of India might not be on the same page, and that will be really bad for the citizens of the country. So now let's try to understand what are the fiscal policies and how do they play a very vital role in the day-to-day management of the economy. So fiscal policy is made by government and monetary policy is made by RBI. Any ruling government has ability to influence the manner in which various resources are utilized in the economy. Fiscal policy is highly effective tool that enables the government to do so. It means that through which government uses taxation and its spending to bring about stability and growth thereby, influencing the nation's economy. So what are in fiscal policy, what are the two basic tools that government uses? Government uses one, it is the tax rates, and one is the spending level. So if you would have ever analyzed the budget, one of the component of the budget is your corporate taxes, your individual taxes, and your indirect taxes. It can be they might increase the rate, they might increase the deductions, they might bring provisions of MAT, they might bring some dividend distribution tax, whatever those kind of changes, they come through the fiscal policy. Another key component of the fiscal policy is the spending level. So you would have seen that government has allocated X percentage to education sector, they have allocated Y percentage to military and the security forces, then they have allocated Z percentage to road development and infrastructure. So these are the various different expenditure that government does, and basis of this it tries to control the expenditure and see what savings it can bring to the people at large and how the economy can be developed. A suitable example of such adjustment by government can be seen in relation to income tax, that it gets levied on the citizen of the country based on the slab rate in which various tax rates have been prescribed for variety of slabs. These tax rates do keep rising with the corresponding increase in the income. Okay, so these are the various ways by changing the tax rate or by decreasing the spending, the government of India tries to manage the fiscal policy of the country. So now let's try to understand what are different mechanism of fiscal policy. So first what we need to understand non-discretionary and discretionary mechanism. So पहले पढ़ते हैं discretionary mechanism होता क्या है. Discretionary fiscal policies for stabilization refers to deliberate policies actions on part of government to change the level of expenditure, taxes, to influence the level of national output, employment and price.
मतलब जो पॉलिसी में गवर्नमेंट कुछ मेहनत करती है, गवर्नमेंट कुछ नया चेंजेस लाती है, गवर्नमेंट कुछ और ऐड या लेस करती है, वैसी पॉलिसीज को हम लोग डिस्क्रिशनरी पॉलिसी बोलते हैं। रेट्स चेंजेस हो गए, अपने एक्सपेंडिचर चेंजेस हो गए, एंड वो सब टाइप के चेंजेस जो हो गए वो आ गए डिस्क्रिशनरी पॉलिसी में। ऑन अदर हैंड व्हाट इज नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी? नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी ऐसी होती है जहां आपको गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं पड़ता, विथ टाइम ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज और ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी and are built-in fiscal mechanism that operates automatically to reduce the expansion and contraction of business cycle. So ये अपने आप कुछ करेक्शन कर लेती है, ये ऑटो करेक्शन पे चलती है। इसको लेकर गवर्नमेंट को कोई नई पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती है, कोई टैक्स रेट चेंज नहीं करने पड़ते हैं, कोई स्लैब चेंज नहीं करने पड़ते हैं। जब वो सारी चीजें चेंज हो रही होती है उसको डिस्क्रिशनरी पॉलिसी बोलते हैं, एंड वो सब चेंज के होते होते और कुछ भी ठीक हो जाता है वो हम नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज बोलते हैं। अब आइए समझते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज। सो व्हाट आर दीज टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसीज? तो एक चीज समझते हैं कि अपना जो पूरा इकोनॉमी होता है वो एक फ्लो में चलता है, विच वी इवन डिस्कस यस्टरडे कि देयर इज अ फ्लो दैट इनकम गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड फ्रॉम अदर टू द थर्ड पर्सन, एंड अगेन दैट फ्लो कीप्स ऑन हैपनिंग। सिमिलरली जो पॉलिसीज डिराइव होती है उसका भी एक अपना फ्लो होता है। मतलब आप सोच के देखिए कि अभी इकोनॉमी डाउन चल रही है, अगर मार्केट में इकोनॉमी अभी बहुत बुरी चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सोचेगी कि लोगों के हाथ में पैसा किस तरह पहुंचाया जाए और उससे उन लोग की स्पेंडिंग पावर बढ़े, एंड उससे उन लोग मार्केट में बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो इस पर्टिकुलर जोन को क्या बोलते हैं? इस तरीके की पॉलिसी जहां पे गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़े, ओके, दैट इज लाइक इंक्रीज इन द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। इस टाइप की पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट्स या फिर तो आपकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शनरी फेज में होती है तब ये आती है। ऑन द रिवर्स हैंड अभी क्या होगा, जैसे जैसे करके आपने लोगों के हाथ में मनी पावर दे दिया तो उन लोग खरीदना चालू कर देंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, बट आपका अचानक से सप्लाई तो चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपका सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है और डिमांड बढ़ते जा रही है तो व्हाट विल यू रिजल्ट इनटू? यू विल रिजल्ट इनटू अ वेरी बूम काइंड ऑफ एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, बट उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन भी आ जाएगा बिकॉज यू आर अनेबल टू मीट द डिमांड्स। सो टू कर्व दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस समय गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। ओके, सो प्लीज ये याद रखिएगा कि जब आपकी मार्केट में आपकी बूम इंडस्ट्री चल रही है या फिर तो एक ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ट्रेंड में है इकोनॉमी की, तब जनरली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आती है। जब इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है तब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आती है। तो अब देखते हैं व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द फिस्कल पॉलिसी। सो इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेट एंड बजट्स। तो ये चार उसके हाथ में तकनीकें होती है जिससे वो आपकी इकोनॉमिक आपकी फिस्कल पॉलिसीज बनाता है। नाउ टू अंडरस्टैंड द फिस्कल पॉलिसीज लेट्स डू सर्टन सिनेरियो एनालिसिस कि किन सिनेरियोज में गवर्नमेंट किन तरीके के काम करेगी और उससे क्या रिजल्टेंट इम्पैक्ट होगा। एंड एज पर मी दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट फॉर दिस, बिकॉज अगर आप ये सिनेरियो समझ जाते हैं तो आपको जनरली यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो चलिए आपके पास में एक सिचुएशन वन देता हूं। सिचुएशन वन कि अभी प्रेजेंटली इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन में है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, और नीचे जाने के कारण लोगों के हाथ में पैसे नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। इट इज सिंपल, अगर मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है तो मैं लोगों को कहां से एम्प्लॉय करने वाला था? ओके, उसके कारण से गवर्नमेंट के पास भी लो स्पेंडिंग पावर बचा हुआ है, एंड मेरे पास ही पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा? कोई लोगों के पास पैसे नहीं है तो कौन मेरे से प्रोडक्ट खरीदने वाला है? तो बिजनेस भी नीचे जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है?
तो इसका मूल कारण समझने की कोशिश करिए कि आज के दिन में लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तभी तो वो चीजें खरीद नहीं पाएंगे। अगर चीजें खरीद नहीं पाएंगे तो एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चर कैसे करेगा, और अगर एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट करेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट किसके लिए करेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम आर समवेयर लिंक्ड टू ईच अदर, ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। सो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस टाइप की पॉलिसी लेकर आती है जिससे लोगों के हाथ में पैसा बढ़े। तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अ पॉलिसी इज कि डिक्रीज द इनकम टैक्स रेट। मतलब पहले मेरे को 100 रुपया में कमाता था, गवर्नमेंट मेरे से 30 रुपए का टैक्स लेता था, मेरे पास 70 रुपए होते थे स्पेंड करने के लिए। अब गवर्नमेंट इस पॉलिसी के तहत क्या करेगी कि मैं अभी कमा तो 100 रुपए रहा हूं, मेरा टैक्स गवर्नमेंट कर देगी 15%। तो मैं मेरे पास हाथ में बचेंगे 85 रुपीज। तो नाउ आई हैव 15 रुपीज more than what I used to have before, and this 15 rupees I am obviously going to expense in the market। इससे मैं कोई नए प्रोडक्ट खरीदूंगा, मैं इसको जाकर इससे कोई चीजें खरीदूंगा। जब मैं मार्केट में जाके चीजें खरीदूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरा स्पेंडिंग पावर बढ़ गया। ओके, अगर मेरा स्पेंडिंग पावर बढ़ गया तो मैं अगर खरीद रहा हूं तो मैं किसी मैन्युफैक्चरर को बोलूंगा सर आप प्रोड्यूस करोगे तभी तो मैं खरीदूंगा। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा जो बिजनेस बड़ा करता है उसको लोग हायर करने पड़ेंगे, बिकॉज उसको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज इन द कंट्री, एंड मोर मनी स्पेंडिंग पावर विल बी गिवन टू द पीपल। जैसे अब 15 रुपया एक्स्ट्रा मेरे को मिला ना, दैट इज माई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर। एंड इससे क्या होगा, गवर्नमेंट विल बी एबल टू इन्वेस्ट मोर इन टू द पब्लिक सर्विसेज ऑल्सो। बट अगर ये करने से हुआ क्या, नाउ व्हाट हैपेंड, जो हमने एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में भी डिस्कस किया था, अभी हुआ क्या, मार्केट में 100 प्रोडक्ट की डिमांड थी, मार्केट सप्लाई कर रही थी 100 प्रोडक्ट। अचानक मैंने लोगों के हाथ में 15 रुपया ज्यादा दे दिया। ओके, तब अब मार्केट में डिमांड हो गई 120 की। लोगों ने एम्प्लॉय जो करता है, लोग जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का। उसने अभी लोगों को एम्प्लॉय किया है, इट विल टेक सम टाइम। तो वो ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंटली 105 कर पाएगा या 110 कर पाएगा। तो अब ये जो 15 या 10 का जो डिफरेंस बचा डिमांड टू सप्लाई का, उससे क्या होगा, आपके प्राइजेस शूट अप होना चालू हो जाएंगे, एंड दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। सो अब गवर्नमेंट के पास दूसरी सिचुएशन आ गई। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, जिस तरह से गवर्नमेंट ने मेरे हाथ में मनी स्पेंडिंग पावर दिया था टू मैनेज दिस फर्स्ट सिचुएशन, गवर्नमेंट मेरे हाथ से वो स्पेंडिंग पावर ले भी सकता है। तो गवर्नमेंट मेरे हाथ से स्पेंडिंग पावर कैसे लेगा, कि अभी उसने किया था 100 में मेरे को बोला था कि आप 15 रुपया का टैक्स दीजिए, आपका 85 स्पेंडिंग पावर है। वो नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी में बोलेगा कि आप अभी 100 कमा रहे हैं, मैं आपसे 35 रुपये का टैक्स ले लूंगा, आपके हाथ में बचेंगे कुछ 65 रुपीज। तो इससे मेरा स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगा। द मिनट मेरा स्पेंडिंग पावर कम हो जाता है, मैं चीजों को खरीद नहीं सकूंगा। आई विल नॉट हैव द कैपेसिटी टू बाई द थिंग्स एज मच आई हैड व्हेन माय स्पेंडिंग पावर वाज 85 रुपीज। So the demand will almost become equal to supply, and that will result into reduction in the prices and reduction in the inflation also। So that kind of a situation जो होती है वो दो तरीके से हो गई। आपने दो सिचुएशंस देखी, एक में जहां पे उन्होंने मनी पावर को बढ़ा दिया और एक में जहां पे उन्होंने मनी पावर को कम कर दिया। so these are the two ways in which government tries to control the fiscal policy। बट आपको एक चीज समझ आ गया होगा, दिस इज ऑल्सो अ सर्कुलर फ्लो। एक घटना के बाद दूसरी घटना का होना निश्चित ही है। मतलब आफ्टर अ inflationary phase there will be a reduction in the economy, and after the reduction in the economy there will be again a phase in which the economy will boom up, because the government will have to use these fiscal policies to manage these situations। Another way apart from taxation is the use of different kind of budgets that what government can do। so let's try to study what are the different kind of budgets। सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट में क्या होता है, इन केस ऑफ बैलेंस बजट द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड रिसीट्स। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है shall be equal to expected receipts।
ओके, तो आपके एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? आप आर्मी के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हो, कंट्री के वेलफेयर के ऊपर, रोड डेवलपमेंट के ऊपर, आप एजुकेशन के लिए ये सारे जो खर्चे कर रहे हो वो आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो गए। आपकी रिसीट्स क्या हुई? आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपके डायरेक्ट टैक्सेस, आपको वर्ल्ड बैंक से जो सब्सिडी मिली, ये सब आपके रिसीट्स हुए। सो दिस हेल्प्स गवर्नमेंट टू कीप अवे फ्रॉम ingenious expenditure and can help in achieving economy achieve stability if implemented appropriately. मतलब in as economy, if this kind of a budget is put and it is implemented in a very appropriate way, then this is the best kind of a budget which is there, because this will give us stability. This kind of budget will give stability, but this kind of budget is not suitable during recession and does not provide any solution in case of unemployment, because इसमें ऐसा कोई suggestions नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, because at the end of the day in a balanced budget both becomes equal, so government is unable to do anything extra for the people. What is a surplus budget? In case of surplus budget, the estimated government receipts exceeds the expected government expenditure for a specified financial year. In simple terms, government spending on public welfare is less than the earning of the government from tax levied. This kind of budget is suitable during a inflation or inflation. जब inflationary phase होता है, जब boom phase होता है इकोनॉमी का, तब जो काइंड ऑफ बजट आता है उसे हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं। सरप्लस बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो ज्यादा होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से साथ, तो इसके द्वारा उन लोग डिमांड को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं और इन्फ्लेशन को कर्व डाउन करते हैं। ऑन अनदर हैंड, व्हाट इज डेफिसिट बजट? डेफिसिट बजट इज जस्ट रिवर्स ऑफ सरप्लस बजट। मतलब क्या हुआ सर? कि जहां पे आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स, these kind of budget are generally brought when the market is in a thrift phase or a contractionary phase. Tab in this kind of budgets are brought in to boost the employment rate and boost the economic situation of the country. अब आते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ओके, कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए कंट्री में, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा बहुत प्रॉब्लम होने लगेंगे। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट टुक सेट, कि इफ पीपल आर एम्प्लॉयड, मेंटली आपको अगर सेटिस्फेक्शन है कि आपके मंथ एंड पे आपके पास कुछ पैसे आने वाले हैं, देन यू विल नॉट गो क्रेजी। But agar if you are not employed, then there is a very high probability that people will start being antisocial. They will start drinking. They will start using drugs and all. So that is why socially it is considered that employment should be the first and foremost goal of any fiscal policy. This helps in curbing down the inflation, to maintain proper balance between receivable and expenditure of the government, to ensure healthy, sustainable economic growth, to reduce poverty and promote economic development, to earn good amount of foreign exchange, and to ensure balanced regional development of the nation. अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया कि टैक्सेशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट, एक्सपेंडिचर दैट इज स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज द अनदर फिस्कल पॉलिसी का एक वो, and spending में it is the revenue spending what comes in and expenditure spending what comes in, both are included. So and the third one is the capital expenditure, the what company does, which are the development of the roads, the loans that they give to the union territories, and all those things come under there, and the revenue expenditure, which are the fourth component. So these are the four components which are there. This is like taxation policies, expenditure policies, capital expenditures, and revenue expenditure policies. Fifth one is investment and disinvestment policies. So optimum disinvestment and foreign investments are necessary to maintain a suitable economic growth. For in the investment and disinvestment policy, FDI becomes highly important to फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर में उसको कितना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो आप कभी कभी देखते होंगे कोई एक नई इंडस्ट्री को उन्होंने अचानक से लेकर आ गए फॉर द पर्पस कि वो 100% अलाउड है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इंडस्ट्री से उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हटा दी।
So all that is used to manage the foreign money that is coming into India, and that is also a part of your fiscal policy, because ये भी generally आपके budget के साथ ही अनाउंस होती है। कि उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स। सो हमने पहले देख लिया व्हाट इज बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला आपका है रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट मींस व्हाट? रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू expenses exceeds the government receipts, मतलब जहां पे expenses are more than receipts, that is the revenue deficit. This is called as revenue deficit. And what is capital account deficit? Capital account deficit is when the government capital disbursement exceeds capital receipts, when disbursements are more than the receipts. This is expressed as a percentage of GDP. What is revenue deficit? Revenue deficit का मतलब हमने समझ ही लिया, जहां पे आपके expenditure are more than the revenue. Okay. And what is the most important for you in exam point of view is the primary deficit. Primary deficit is nothing but fiscal deficit minus interest payment. This enables us to get an overview on how the government conducts its financial affair in the present scenario. Primary deficit का मतलब क्या होता है? Borrowing needs of the government to fulfill the fiscal deficit. तो आपके अगर फिजिकल डेफिसिट आई, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रेवेन्यू है, आपकी जो रेवेन्यू रिसीट्स है दैट आर लेस देन योर एक्सपेंडिचर, योर कैपिटल रिसीट्स आर लेस देन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस डेफिसिट को जब मीट करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू बोरो मनी। तो वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ओके। अब आते हैं व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसीट्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसीट्स, वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड वन इज कैपिटल रिसीट्स। So revenue receipts are non-redeemable as government does not have any obligation to return any amount. These neither create any liability or nor lead to reduction in asset of the government. Revenue receipt can be in form of tax as well known as non-tax revenue. These refer to current income receipt of a government from all potential sources. Okay. Capital receipt on other hand क्या हुआ? Capital receipt that reduces the government assets or are disinvestment to raise the funds through partial or total selling of the shares. तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। This creates liability or results in reducing the asset. Let us consider an example of capital receipt that creates liability are borrowing which leads to liability to return the loans, fundraising from PPF or small saving deposit that creates liability to repay the amount of PPF. So anything which creates a liability for government, liability create करता है गवर्नमेंट के लिए कोई भी काइंड ऑफ रिसीट, तो वो है कैपिटल रिसीट। जहां पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ओके। So these are certain differences between fiscal policies and monetary policies. You will be able to give more importance to this once we cover the monetary policies. तो ये आप घर पे अपने अकॉर्डिंगली टाइम पे पढ़ सकते हैं। अब आइए मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है। सो आपने ये समझा कि फिजिकल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेकर आता है जनरली वो लेकर आता है 28 फेब ऑफ द ईयर को। ओके। और नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी वापस आएगी आपकी अगले 28 फेब 2022 को। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे दौरान इन दिस पूरा फुल ईयर विल देयर बी नो एक्सेप्शनल इवेंट्स? ऐसा कुछ होगा कि जो आपने पॉलिसी में प्लान नहीं किया था बट कुछ ना कुछ तो होगा। देयर कैन बी सम राइट्स हैपनिंग, देयर कैन बी सम नेचुरल डिजास्टर हैपनिंग, देयर कैन बी मेनी अदर रीजन बाय व्हिच द इकोनॉमी विल नॉट गो एज पर द प्लान्ड थॉट। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? उससे बचने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हद में ये रहकर बनाई जाती है कि व्हाट विल बी द मॉनेटरी पॉलिसीज। तो
अब जैसे टैक्स हो गया और एक्सपेंडिचर हो गए, ये तो हो गए फिस्कल पॉलिसी के टूल्स, ये हमने समझ लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आती है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो किस तरीके की होती है और उसमें क्या क्या होती है उसको समझते हैं। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट द इकोनॉमी इज impacted by monetary policy are: it assists in overall economic and sectorial growth, maintain the forex, obtain the stability in GDP, and reduce the unemployment rate. So these are the some of the key objectives of monetary policy. अब देखते हैं, सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज किस तरह से होती है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो इसमें भी एग्जैक्टली हमने जैसे फिस्कल पॉलिसीज में हमने देखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट चेंजेस लाती है अपने काम में। तो आइए पहला एक सिचुएशन देखते हैं कि हमारे हाथ में एक सिचुएशन है कि मार्केट रिसेशन में चल रही है, लेस मनी फ्लो है, देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो पब्लिक स्पेंडिंग होकर रखी हुई है, एंड बिजनेस वालों के पास भी पैसे नहीं है टू डू मोर इन्वेस्टमेंट्स। तो इन सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? मतलब अभी इन सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ, एज ऑफ नाउ देयर इज रिसेशन इन द कंट्री, आंसर इज यस। तो नाउ व्हाट विल गवर्नमेंट डू फॉर सच अ सिचुएशन? सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI, okay, can make a expansionary monetary policy to target the reduction in interest rate. Okay, so this is very important. क्या टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी में? तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट टारगेट होता है। कैसे टारगेट होता है वो हम अब समझेंगे। यूजिंग वेरियस वे टू गिव राइज टू द कस्टमर स्पेंडिंग कैपेसिटी टू इंक्रीज द डिमांड फॉर डिफरेंट डेली गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल बीइंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने जब देखा था फिस्कल पॉलिसी में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, तो हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स को चेंज करके लोगों के हाथ में स्पेंडिंग पावर दिया। बट मॉनेटरी पॉलिसी तो वो सेम काम नहीं कर सकती, तो दोनों का अलग अलग काम होने का मतलब ही नहीं होता अगर दोनों सेम ही करते। तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसीज प्लेज विद द इंटरेस्ट रेट्स लाइक SLR, CRR, ऑल दोस काइंड ऑफ रेट। इसका मतलब हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली आपको एक चीज समझना होगा कि बैंक बिजनेस किस तरह से करती है। से फॉर एग्जांपल एक बैंक है HDFC, ओके, इसमें मैं जाता हूं और मैं उसमें 100 रुपए डिपॉजिट करता हूं। तो आपको क्या लगता है कि HDFC ये 100 रुपया अपने पास ही रखेगी? ओके, या फिर तो HDFC सा कुछ करेगी? HDFC पैसे कैसे कमाएगी? तो there are the prima facie two ways in which a bank earns. One is by doing certain investments, okay, which are permitted by RBI, and second is giving loan to us. लोन दोगे तो लोन मिलने से क्या होगा? आई विल बी एबल टू बाय हाउस, और आई विल बी एबल टू बाय कार, और आजकल तो EMI पे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, टीवी, फ्रिज, समथिंग समथिंग आई कैन बाय। सो बेसिकली बैंक इससे कमाती है। इसमें लोन में बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट अर्न करेगी बैंक। सो बैंक जनरली अर्न्स फ्रॉम टू मॉडल्स, बाय इन्वेस्टिंग इन सर्टेन अदर फंड्स एंड गिविंग लोन्स। सो नाउ हाउ डज माई स्पेंडिंग पावर चेंज इफ द लोन का अमाउंट विल चेंज? एज ऑफ नाउ से फॉर एग्जाम्पल RBI बोलती है कि आप अपने पास जितने पैसे हैं उसका 70% ही लोन दे सकते हो। तो मैं मार्केट में कितना पैसा दे सकूंगा? बैंक HDFC बोलेगा मैं तो खाली 70 दे पाऊंगा। तो 70 ही आदमी खर्चा कर पाएगा। मैं मेरे को मैक्सिमम लोन HDFC कितना दे सकती है? 70 रुपीज। तो मैं मैक्सिमम एक्सपेंसेस कितने का कर पाऊंगा? 70 रुपीज का। वेरेज अगर मैं बोल दूं कि गवर्नमेंट चेंज कर देती है कि ये 30% सेविंग्स की जगह आप 20% सेविंग्स कीजिए, बैंक को बोलती है कि आप मिनिमम 20% मेंटेन कीजिए, तो अब बैंक क्या करेगी? 80 रुपीज मार्केट में छोड़ पाएगी। तो इससे क्या हो गया? मेरे हाथ में 10 रुपीज का स्पेंडिंग पावर बढ़ गया। अगर मेरे हाथ में 10 रुपीज से स्पेंडिंग पावर पड़ गया तो मैं अब क्या करूंगा? मैं मार्केट में जाके नए प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। मैं अगर मार्केट में जाके नए प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूं तो कहीं ना कोई एंटरप्रेन्योर उसको मैन्युफैक्चर करेगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर उसको मैन्युफैक्चर करेगा तो वो उसको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, बिकॉज वो उसकी कैपेसिटी से ऊपर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इससे क्या होगा? डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज, it will lead to decrease in interest rate, more spending power will be given to the customer, demand of the products will increasing, more demand will lead to better employment opportunities for people.
अब इससे क्या होगा, अगेन दिस फ्लो आ जाएगा, जो सर्कुलर फ्लो होता है कि ये हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अब यहाँ पे जैसे डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की, सप्लाई तो लिमिटेड ही है एज वी ऑल नो, तो सप्लाई लिमिटेड के होने के कारण इन्फ्लेशन विल राइज। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या मॉनेटरी पॉलिसीज करेगी, उसको देखते हैं। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि बैंक भैया मैंने अभी आपको जो 20% रखने के लिए बोला था, जिससे आप 80 रुपीज का लोन दे पा रहे थे, अब मैं ये 20 रुपीज को चेंज करके 30 रुपीज का 30% कर देती हूँ। तो अब आप खाली 70 रुपए का लोन दे पाओगे। तो इससे क्या हुआ, मेरा स्पेंडिंग पावर कम हो गया 10 रुपीज से, क्योंकि अब बैंक मेरे को 70 रुपए का ही लोन देगी, 70 रुपीज लोन बैंक विल गिव इट टू मी। So now what will happen, because of the reduction in the spending power, I will be able to purchase less number of goods from the market, which will result into कि demand will almost become equal to the supply, and that will result in the reduction of inflation of the country. So this is how the monetary policies are used to manage the different kind of situations. So आप सर पूछ सकते हो what is the difference between fiscal policy and monetary policy? So my answer would be fiscal policies are framed with a long term point of view of 1 year, 2 year and 5 years kind of a time, कि ये कर देते हैं तो 3-4 साल में ये इम्पैक्ट आ जाएगी। बट मॉनेटरी पॉलिसीज क्यों फ्रेम होती है, जो शॉर्ट टर्म चेंजेस आती है उसको मिटिगेट करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज लाई जाती है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमने समझ लिया है। ओके, फैक्टर्स इंपैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसीज देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमने अभी समझने का कोशिश किया था। एक फैक्टर लिया था हमने इंटरेस्ट रेट का, तो इसमें है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स में भी चेंज कर सकती है, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट्स में भी चेंज कर सकती है। ओके, फॉरेन मनी जो आएगा उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस कर सकती है टू इम्पैक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द various other concepts. The first concept that we are going to understand is the cash reserve ratio, CRR. CRR का मतलब क्या होता है? CRR का मतलब होता है कि एक मिनिमम परसेंटेज जो बैंक्स को मेंटेन करना होगा विथ RBI. Okay, so this is, it refers to minimum percentage of the total deposit of the customer in the commercial bank that the bank is required to hold as a reserve, either in form of cash or in form of deposit with RBI. मतलब ये क्या हुआ कि HDFC को RBI बोलेगा कि आप 20% मिनिमम होल्ड करोगे एज CRR। ओके, तो HDFC के पास अगर 100 रुपए डिपॉजिट हुए तो उसको 20% अलग से मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश और डिपॉजिट, एंड वो मार्केट में लोन दे पाएगा 80 रुपए से। तो अब इसका क्या होता है इम्पैक्ट, यहाँ पे इम्पैक्ट यही होगा कि अगर आपका CRR बढ़ा दिया गया, अगर CRR आपका 20% की जगह 30% कर दिया, तो यू कैन कंट्रोल द स्पेंडिंग इन द हैंड ऑफ द एंड कस्टमर। अगर आपने स्पेंडिंग कम कर दी, अगर आपने 30% कर दिया तो ये 70 रुपीज हो गए, तो अब लोगों के पास 10 रुपए कम है। अगर आपने CRR को कम कर दिया, आपने 10% कर दिया, तो लोगों के हाथ में स्पेंडिंग बढ़ गई, 90 रुपये हो गए। तो CRR इज यूज फॉर दीज पर्पसेस। तो इम्पैक्ट देखते हैं क्या है। हायर CRR will lead to more money of bank with RBI, less fund with commercial banks, that's why they will able to give less loans, less funds with the people, less loans means मेरे को 70 रुपीज हो गया तो मेरे को कम लोन मिलेगा। This will result in decrease in demand for goods and services, which will reduce the prices and inflation shall come under control. Okay, this is A. B हो गया सेकेंड सिचुएशन व्हेन CRR फॉल्स। जब आपका CRR कम कर दिया तो आपने बैंक के पास, अब RBI के पास बैंक कम पैसा रखेगी, उसके पास ज्यादा पैसा हाथ में होगा, तो इट विल गिव मोर लोन्स टू पीपल। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द स्पेंडिंग पावर, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज इन द डिमांड एंड रेजिंग द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इट रिफर्स टू अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट that a commercial bank needs to maintain with them in various form of liquid assets over and above CRR, such as government approved securities inclusive of government bond, gold and cash. Statutory liquid ratio can be considered by RBI as a percentage of demand of the total liability. So आपका यहाँ पे जैसे आपने CRR मेंटेन करते थे विद RBI, आपको SLR मेंटेन करना है इन फॉर्म ऑफ सर्टन deposits in terms of your gold, cash और certain approved government securities in your bank only. आपको अपनी बैंक में ही मेंटेन करना है ये, but you will have to maintain in certain different kind of securities
और गोल्ड और कैश। ओके, तो ये रेशियो भी एग्जैक्टली सेम प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ सीआरआर। अगर मैं एसएलआर बढ़ा देता हूं, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा रोक के रखना पड़ेगा। इट विल हैव टू कीप मोर मनी विथ इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो। सो उससे व्हाट विल हैपन, इट विल हैव लेसर मनी टू गिव टू द पीपल ऑफ द कंट्री, which will curb down the inflation. On the other hand, if SLR is low, it will have more funds to give to the people of the country, which will result into more spending power, and that will result into increase in the demand, which finally leads to inflation. Now let's try to understand concept of repo rate and reverse repo rate. Repo rate refers to the interest rate at which RBI lends the money to the commercial bank against the securities sold and repurchased by RBI. आइए एक सिचुएशन समझते हैं। बैंक को मैंने डिपॉजिट किया था 100 रुपया, बैंक ने 20 रुपया SLR और CRR में रख दिया और बैंक ने 80 रुपये का लोन दे दिया। ओके, अगले दिन सुबह उठ के मैं बैंक के पास जाता हूँ, बोलता हूँ बैंक भैया मेरे को मेरे 100 रुपया वापस चाहिए। तो बैंक ये 100 रुपये कहाँ से लाएगा? बैंक मैक्सिमम बोल सकता है सर मैं आपको 20 रुपये दे सकता हूँ, मैंने 80 रुपये का तो लोन दे दिया। तो बट मैं तो कस्टमर हूँ, मेरा पैसा बैंक के पास है, बैंक को तो देना पड़ेगा। तो इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन बैंक विल हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई जिस रेट पे लोन बैंक को देगी उस पर्टिकुलर परसेंटेज को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट का भी जो इंक्रीज डिक्रीज होता है दैट पर्टिकुलरली इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड मेंटेन द लिक्विडिटी। इट्स द सेम थिंग, आप रेपो रेट बढ़ा दोगे मतलब आप बैंक के लिए खर्चा बढ़ा रहे हो, बैंक का खर्चा बढ़ा रहे हो मतलब बैंक का स्पेंडिंग पावर आप कम कर रहे हो। तो अकॉर्डिंगली रेपो रेट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑन अनदर एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? अगर मैं जाता हूं, मैं HDFC हूं, मैं जाता हूं आरबीआई के पास और मैं बोलता हूं कि आरबीआई अंकल मेरे को आप 100 करोड़ रुपया लोन पे दीजिए। इट इज पॉसिबल कि आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपया हो तो वो मेरे को दे देगा। अगर आरबीआई के पास 100 रुपया नहीं है तो आरबीआई कहीं और से मेरे को लोन लेकर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एसबीआई से लोन लेता है। ओके, तो आरबीआई एसबीआई से जो लोन लेगा वो लोन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एंड इस पर्टिकुलर जो मैंने HDFC ने आरबीआई से लिया उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। सो जब आरबीआई लोन ले रही है तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज कम रखेगी उसका, एंड जब आरबीआई लोन दे रही है तब वो उसका परसेंटेज ज्यादा रखेगी। सो ऑलवेज द रेपो रेट विल बी हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। तो इसका भी एग्जैक्टली सिमिलर सर्कमस्टांसेस यू कैन क्रिएट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट फंक्शंस इन बोथ द एनवायरमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। अब चौथा आता है बैंक रेट। इट इंडिकेट्स द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक विदाउट प्लेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। तो आपको यहाँ पे एक बाइफर्केशन लेना पड़ेगा। जो रेपो रेट होती है, आपने अगर पढ़ा होगा रेपो रेट में मैंने बोला भी था कि रेपो रेट में दे हैव टू प्लेज द बाय सेलिंग सर्टन सिक्योरिटीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक रेट में देयर इज नो सिक्योरिटी नीडेड, नो सिक्योरिटी। So can I say that कि my repo rate will be always less than my bank rate, because repo rate में गवर्नमेंट को लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी मिल रही है, बट बैंक रेट के केस में लोन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो दैट्स व्हाई बैंक विल ऑलवेज चार्ज अ हायर बैंक रेट इन कंपेरिजन टू द रेपो रेट। ओके, इसमें इम्पैक्ट क्या होता है, अगर बैंक रेट ज्यादा है, इफ द बैंक रेट इज हाई, द इंक्रीज बैंक रेट ऑफ लोन टू बैंक एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक टू द पीपल। जो मतलब अगर मेरे को लोन लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है तो मैं तो एंड कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्ट मांगूंगा ही, और अगर मैं ज्यादा में इंटरेस्ट मांगूंगा तो लोग मेरे से कम लोन लेंगे, पीपल विल कम एंड टेक लोन। अगर मैं 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा था तो अब लोग 100 करोड़ का लोन लेने आ रहे थे मेरे पास, बट अगर मैं 8% कर दूंगा इंटरेस्ट रेट तो ये गिर के समवेयर अराउंड 60 लैक्स और 60 करोड़ और 70 करोड़ हो जाएगा। तो क्या हुआ, इतना करोड़ से मार्केट में कैश कम हो गया। मार्केट में कैश कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा जो बढ़ गया होगा। तो बैंक रेट्स का मैं यूज तब कर सकता हूँ। ओके, तो कंपैरिजन दी हुई है, रेपो रेट इज चार्ज्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज
and bank rate is not charged against any kind of securities. Repo rate are always lower than the bank rate because यहाँ पे security मिलती है इसलिए कम है, and bank rate are higher than the repo rate. So this is the basic difference between both. पांचवा आता है marginal standing fund. By this mechanism, commercial banks can get loan from RBI for emergency needs. Commercial bank can take this loan up to 1% of their liabilities. So बैंक ने रेपो रेट से लोन ले लिया, बैंक ने बैंक रेट से लोन ले लिया, बट स्टिल उसकी लोन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फंड से भी ले सकता है लोन, बट उसकी लिमिट है 1% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज जो बैंक की होगी उसका। सिक्स्थ आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? It refers to purchase and sale of government securities and bonds by the central bank in order to regulate supply of money in short term market. मतलब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स, अपनी जो सिक्योरिटीज होती है उसको सेल करती है मार्केट में कैश जनरेट करने के। So friends, that's all about money market, monetary policies of the country. So what we have understood today is two different forms of monetary policies that government uses to control the GDP or the control the national income of the country. Fiscal policies are generally driven for a long-term point of view, whereas monetary policies are used to manage the short-term requirement of the country. Hopefully, this video will help you to understand the concept of fiscal policy and monetary policy. Hope you enjoyed this video. Please do share with your friends who are trying to appear for this RB examination. Do subscribe to our channels, Concept Builders. Thank you, listeners.